And here is the picture of the tectonic plates, and the movement also shown here. The tectonic movements like divergent movement, convergent movement, and transformed fault boundaries. So divergent means two plates are moving in opposite direction, then it is called a divergent movement, like this. This movement is divergent movement, and when the plates moves towards each other, this movement will be called the convergent movement. Okay, and these are the main 7 tectonic plates. These are the major tectonic plates: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now come to the next topic, that is rocks. What do you mean by rocks? Rocks are natural occurring combination of minerals. Rocks are naturally occurring combination of minerals. A few rocks contain only one type of mineral. Most of the rocks contain 2 or more different minerals. On the basis of origin, they may be grouped under 3 categories. So what do we mean by rocks? Rocks are the combination of some kinds of mineral, and one rock mostly the rocks are containing more than one mineral in each rock. एक चट्टान जो है वो नेचुरल होता है, इसको आर्टिफिशियल नहीं होता है. रॉक्स आर नेचुरल एंड दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ different kind of minerals, and very few rocks have one mineral. Understood? Okay, now the types of rocks we will study. There are 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. There are 3 kinds of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Again, the igneous rocks are divided into 2 types: extrusive rocks or volcanic rocks, and intrusive rocks. And the sedimentary rocks are divided into 2 types: organic rocks and inorganic rocks. Okay, let's study about the igneous rocks. Intrusive igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. You can see inside. Metamorphic rocks are inside the earth, intrusive igneous rocks are inside the earth, and mostly the sedimentary rocks we can see on the top of the earth crust. Okay, earth crust where rocks are formed. कहाँ ये बनते हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स मोस्टली जो है ज़मीन के भीतर बनते हैं. इंट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो मोस्टली ज़मीन के भीतर होते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स मोस्टली ज़मीन के ऊपर बनते हैं, बिकॉज दे आर द रिजल्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग एंड इरोजन. ओके, दे आर ट्रांसपोर्टेड, दे आर वेदर्ड. ओके, सो उसी प्रोसेस में लेयर बाय लेयर ये जब हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसको हम अच्छा से आपको आई विल क्लियर. ओके इट नाइसली. सो लेट्स स्टडी अबाउट द igneous rocks. The word igneous has been derived from
Latin word ignis, which means fire. Igneous rocks are thus formed through the solidification of molten material. All igneous rocks forming materials are liquid, hot and sticky, which move towards the surface through cracks and joints from a depth of 60 to 100 kilometers. Igneous rocks are known as the parent rocks or the primary rocks, as well as all other rocks are derived from igneous rocks. Let's understand this para. igneous rocks जो है वो लैटिन वर्ड ignis से बना हुआ है, जिसका मतलब फायर होता है, आग होता है. तो igneous rocks जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको इससे प्रीवियस सेशन में कि जो हमारा मेंटल है, आई क्लियर्ड इट ना नाइसली, कि मेंटल में हॉट मॉल्टेन लावा, हॉट मॉल्टेन मैग्मा बहता रहता है. ये सब जितने भी रेड आपको दिख रहे हैं दैट ऑल आर मैग्मा. ओके, एंड मैग्मा जो है वो ज़मीन के भीतर होता है, ये मेंटल में होता है. बट आई हैव टोल्ड दैट इट हैज़ अ ग्रेट प्रेशर. मेंटल हैज़ अ ग्रेट प्रेशर होता है. क्या चीज़ का? हीट का. हीट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और एनर्जी से प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव क्रिएट होता है. ठीक है, जब भी किसी भी चीज़ को ज़्यादा गर्मी दी जाती है, जैसे प्रेशर कुकर में यदि आप किसी चीज़ को चूल्हे पे चढ़ा दोगे, प्रेशर कुकर को पानी डाल के, तो वो गर्म होती है. गर्म होकर वो किधर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है ना. तो ये भी जब गर्म होता है तो इसका प्रेशर जो हीट है वो ऊपर की तरह टेंड करने लगता है. इट टेंड्स टू गो अपवर्ड. और जब इसको कोई वेंट या क्रैक्स मिलता है ज़मीन के भीतर, वो तुरंत वहीं पे एक चैम्बर बनाता है. चैम्बर बनाने के बाद वो प्रेशर क्रिएट करके वहाँ पर क्रैक्स बनाता है, और क्रैक्स बनाने से वोल्केनिक इरप्शंस होता है. ओके, द वोल्केनिक इरप्शंस टेक्स प्लेस व्हेन दिस हीट एंड प्रेशर ऑफ द mantle have the pressure, then it tend to go upward and create vents and cracks. And when the vent and cracks created, it comes out in the form of lava. Magma comes out through the vents and it is called the lava. तो इसी तरह से जब igneous rocks are thus formed through the सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मॉल्टेन मटेरियल. ये मॉल्टेन मटेरियल मतलब पिघला हुआ जो मटेरियल होता है, जो पत्थर होते हैं, जो मेंटल के भीतर होते हैं, वो जैसे वेंट्स मिलता है, जो जैसे क्रैक्स मिलते हैं, वो उससे बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है ना. तो बाहर निकलने लगते हैं, तो ये बाहर निकलता है तो ये एक पहाड़ के रूप में बनाने लगता है. जो मॉल्टेन मैग्मा है, ये बाहर आते हैं, इसको लावा बोला जाता है. वही मॉल्टेन रॉक्स जो है और मटेरियल है वो ज़मीन के अंदर मैग्मा कहा जाता है. और जब ये बाहर आउटसाइड आ जाता है वेंट के थ्रू, तो इसको लावा बोला जाता है. तो ये इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वोल्केनो. ठीक है, तो वोल्केनो से जो भी मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में, दैट लावा इज़ igneous रॉक्स. ये जब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, उसका सॉलिडिफिकेशन का मतलब ये मॉल्टेन मैग्मा जैसे बाहर आता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है. और सॉलिड बनता है तो वो कैसा होता है? वो पत्थर का रूप ले लेता है. ठीक है, और ये काफ़ी हल्के होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और बहुत हल्का. जैसे कि आप लोग प्यूमिक स्टोन देखे होंगे. प्यूमिक स्टोन जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो लड़कियां अपने वो शरीर को रगड़ने के लिए, पैर वैर को साफ़ करने के लिए वो स्टोन होता है जिसमें बहुत सारा छेद होता है. दैट इज़ द काइंड ऑफ igneous रॉक्स. ठीक है, आप कभी भी मौका मिले तो आप मार्केट में उसको देखोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि हाउ व्हाट इज़ igneous रॉक्स. ओके, तो फिर क्या है कि ऑल igneous रॉक्स फॉर्मिंग मटेरियल आर लिक्विड, हॉट एंड स्टिकी विच मूव्स टूवर्ड्स द सरफेस. मैंने जैसे बताया कि जो मेंटल के भीतर जो मॉल्टेन रॉक्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो सरफेस पर आने की कोशिश करते हैं. वाई? बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट प्रेशर ऑफ हीट, है ना.
हीट के कारण इसको बहुत सारा प्रेशर होता है और ये अपवर्ड टुवर्ड्स द सरफेस ये मूव करता है और मूव करके 60 से 100 किलोमीटर तक के 60 to 100 किलोमीटर्स का डेप्थ से नीचे से ये प्रेशर बनाकर ये बाहर की तरफ निकलता है। और जो बाहर निकलता है तो इग्नियस रॉक्स आर नोन एज पेरेंट रॉक। और दुनिया में जितने भी आप रॉक्स देख रहे हैं वो सबसे पहले ये जो इग्नियस रॉक्स से जो चट्टान बनते हैं इसी के डिफरेंट फॉर्मेशन से क्रिएट होते हैं। डिफरेंट प्रोसेसिंग होता है इन इग्नियस रॉक्स का और तब जो है आपको द अदर फॉर्म ऑफ लाइक सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको मिलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सभी रॉक्स का पेरेंट बोला जाता है, पिता बोला जाता है, या तो फिर प्राइमरी रॉक्स भी बोला, क्योंकि इग्नियस रॉक्स और किसी फॉर्म ऑफ रॉक से तैयार नहीं होता है। वो ओरिजिनली सबसे पहले मैग्मा जो है वो बाहर आता है, उसका सॉलिडिफिकेशन होता है और तब वो चट्टान का रूप लेता है। तो इसमें किसी अदर रॉक्स का कोई रोल नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। ओके, igneous rocks are also called the parent rock or the primary rocks. So this is the example of igneous rocks. Granite is the example of igneous rocks. It is a primary rock. It doesn't need the other rocks. It is not a form of new form of another rock. It is a new rock itself. ये ग्रेनाइट बनने के लिए किसी अदर रॉक्स का फॉर्मेशन ये नहीं है, मेटामॉर्फिक नहीं है ये, बट इट इज़ ओरिजिनल एंड इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द रॉक्स एंड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक ग्रेनाइट एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स. द अनदर एग्जाम्पल ऑफ igneous rock is basalt. Okay, now come to the next topic, the types of the igneous rocks. Igneous rocks are further divided into extrusive igneous rocks and the intrusive igneous rocks. Extrusive igneous rocks are formed due to the solidification of lava and at the surface of the earth. These are known as volcanic rocks because lava reaches the surface of the earth as a result of volcanic eruption. As I have told you earlier that lava is the form of magma which comes out from the surface, means inside the molten rocks are called magma, and when it comes out from the volcano it is called lava. So when the lava at the surface comes and solidify, then it is called the igneous rocks. Okay, जब हॉट मोल्टेन मैग्मा बाहर आता है तो उसको लावा कहा जाता है और लावा जब ठंडा हो जाता है और पत्थर का रूप ले लेता है तो वो उसी पत्थर को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. ओके, सो it is always formed due to the volcanic eruption. So this sandstone and the limestones and the limestones are the example of sedimentary rocks. So don't study this, we will not focus on this, we will take this example later when we will study the sedimentary rocks. But first of all you just understand that जो igneous rocks ज़मीन के ऊपर बनते हैं, जो ज़मीन के ऊपर हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव igneous rocks कहते हैं. ज़मीन के ऊपर वाले igneous rocks को हम एक्सट्रूसिव igneous rocks कहते हैं. Extrusive igneous rocks are formed due to the solidification of lava, and lava always found on the surface. So lava at the surface of the earth, these are known as volcanic rocks. Lava, as I have told that lava cools down very quickly, so here is also written lava cools down rapidly and mineral
crystals and mineral crystals of exclusive igneous rocks make it like a mass of dark glass. Basalt is the best example of extrusive igneous rocks. It is used for building roads or on weathering. It yield a fertile black soil locally known as rigor. तो यदि ये सॉलिड फॉर्म में ये कैसा दिखता है, बसाल्ट जो है ये आपको बसाल्ट जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का, और इग्नियस रॉक्स में बसाल्ट एक अच्छा एग्जांपल हो गया। और बसाल्ट कैसा दिखता है, बसाल्ट दिखता है एक मिरर की तरह, खूब काला चमकता हुआ ग्लास की तरह यह दिखता है। नाउ ये इसका यूज़ क्या है, ये रोड बनाने में काम आता है, और यदि ये पाउडर हो जाता है, इसका वेदरिंग इरोजन होता है इस तरह के रॉक्स का, तो ब्लैक सॉइल बनाता है। दैट्स वाई ये कहाँ ज़्यादातर जो जैसे कि इसको वन कॉन्सेप्ट आई वांट टू गिव यू, जैसे हमारा जो डेक्कन प्लेटो है ना, डेक्कन प्लेटो कहाँ है, आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। डेक्कन प्लेटो जो है वो हमारे साउथ एरिया में है, महाराष्ट्र में। ये जो हमारा एरिया है ना, इतना ये ट्रायंगुलर शेप में ये जो एरिया हम देखते हैं भारत के मानचित्र पे ऑन द मैप ऑफ द इंडिया, ये ट्रायंगुलर जो है वो प्लेटो है ना, डेक्कन प्लेटो। डेक्कन ये प्लेटोज ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड द प्लेटो ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटोज। तो ये डेक्कन प्लेटो जो है और जो सेंट्रल हाईलैंड है, दे आर द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रॉक, दे आर ओरिजिनल। अब ये कैसे समझो, हमारा जो वर्ल्ड है, अर्थ है, वो कैसे बना है तुम लोगों को पता है ना। वर्ल्ड हमारा बना विद अ बिग बैंग ऑफ द ब्लास्ट ऑफ fire, dust and ice, and about millions of years our earth is a ball of fire. Our earth was a ball of fire. ये जलता रहा बहुत दिन तक, ये एक फायर बॉल की तरह यूनिवर्स में उसी तरह से था। उसका धीरे धीरे ये ठंडा हुआ। अभी भी हमारा जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट ही ठंडा हुआ है, अभी भीतर पूरा गर्म है, सूरज की गर्मी के समान। तो ये जो ठंडा हुआ ना, तो इसमें जो हमारा पानी है ना, ये जो पानी है वो तो पानी है, और जो हमारा मेन 7 जो हमारे ये हैं क्या कहते हैं उनको, कॉन्टिनेंट्स, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा, तो फॉर्म्स ऑफ लैंड तो आप जान रहे हैं ना। फॉर्म्स ऑफ लैंड क्या है, प्लेन्स है ना, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, माउंटेन्स है, उसके बाद क्या है, प्लेन्स है, प्लेटोज है, माउंटेन्स है। चलो इसी को रख लेते हैं अभी, मेजर और डेजर्ट है, डेजर्ट रख लो, ठीक है। तो इसको देखो, प्लेन्स जो है वो कैसे बनते हैं, माउंटेन्स के वेदरिंग से। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये कोलाइजन ऑफ द प्लेट्स के कोलाइजन से बनता है, या तो डाइवर्जेंट मूवमेंट या कन्वर्जेंट मूवमेंट के थ्रू ये अपलिफ्ट हो जाता है, तो ये माउंटेन का रूप ले लेता है। डेजर्ट कैसे बनता है, जब ये क्या कहते हैं, जो वेदरिंग इरोजन से जो सैंड्स जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ वेजिटेशन नहीं हो पाता है, तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं ना। इफ़ देयर इज़ नो वेजिटेशन देन इट बिकम्स द प्लेन्स बिकम्स डेजर्ट्स। लेकिन ये कैसे बनता है, देयर इज़ नो आंसर ना। क्यों, क्योंकि ये बना हुआ है, दे आर ओरिजिनल। ये जो वोल्केन, जो जलता हुआ आग का गोला ठंडा हुआ, तो वो उसी फॉर्म में रह गया। इट इज़ कॉल्ड द गोंडवाना लैंड।
जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तो ये जो पूरा जो लावा था एक जगह जम गया और पानी उसके चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में थे। तो उस समय एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही लैंड मास था। समझ में आ रहा है? एक ही लैंड मास, जो हम 7 एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, वैसा नहीं था। ये सब मिला के एक ही हमारा लैंड मास था एंड इट वाज वेरी बिग। और जब ये क्या कहते, इसको हम क्या कहते थे? इसको कहते थे गोंडवाना, गोंडवाना बोलते थे। ठीक है, ये जो एक लैंड मास था, सिंगल लैंड मास, पूरे पृथ्वी पर एक ही लैंड मास था, वो था गोंडवाना। ये धीरे धीरे वही इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी मूवमेंट था उसे ये क्रैक किया। ठीक है, ये क्रैक किया और 7 पार्ट्स में ये अलग अलग हो गया। कोई अमेरिका बन गया, कोई अफ्रीका बन गया, कोई यूरोप बन गया, कोई एशिया बन गया और कोई ऑस्ट्रेलिया बन गया। समझ में आ रहा? लेकिन ये जो ओरिजिनल लैंड फॉर्म था, जो ठंडा होने के बाद ये वोल्केनो से ही हुआ, माने वोल्केनिक इरप्शन से ही ये जो हॉट मोल्टेन है ना, ये जब बाहर आता गया तो एक बिग लैंड मास बना। और ये जो है, ये मैंटल का जो मोल्टेन रॉक्स था, ये बाहर आया और एक लैंड फॉर्म बना पानी के ये में आके, संसर्ग में आके ये बना। और तब ये जो है लावा ही था, लावा से ही, लावा रॉक्स से ही ये बना गोंडवाना। और ये गोंडवाना ही अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गए। उसमें से ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये अभी तक वही ओरिजिनल गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, और ये जो है, ये जो कोस्टल प्लेन्स है, जो समुद्र से जो पानी का जो दबाव, ये प्रेशर के कारण इससे कुछ टूटा तो ये बना कोस्टल प्लेन्स। और प्लेन्स तो बाकी जो प्लेन्स है वो तो माउंटेन से बने, है ना। और माउंटेन्स क्या से बने? वो उसका क्या कहते हैं, माउंटेन्स जो बने वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट मूवमेंट के कारण बने। वो किसके वजह से बने? यही पेरेंट रॉक जो है हमारा गोंडवाना का और सेंट्रल हाईलैंड का, वो उसी में जो भी फॉर्मेशन हुआ सो हुआ। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, ये शुरू से थे। और उसके बाद जितनी भी चीज़ बनी है, चाहे वो माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो या प्लेन्स हो, वो इन्हीं के फॉर्मेशन से बना, इन्हीं के फॉर्म्स को चेंज हुआ तो ये सब बने। तो अब आपको जैसे बताया जा रहा है इसमें कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो लावा से बनते हैं। ठीक है ना, तो लावा से बनते हैं, तो दैट मीन्स दैट आर इग्नियस रॉक्स। एंड हियर यू सी वी नो दैट महाराष्ट्र हैज़ द ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये तो लावा से बना हुआ है, तो इसका जो भी वेदरिंग इरोजन होगा और जो भी सैंड इससे बनेगा और द सॉइल बनेगा, नॉट सैंड, सॉइल बनेगा, वो ब्लैक सॉइल होगा। और ब्लैक सॉइल होने की वजह से ये जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ही फर्टाइल होता है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द फार्मिंग ऑफ द कॉटन। इट इज़ बेस्ट फॉर कॉटन फार्मिंग, कॉटन क्रॉप्स। ओके, तो आप लोग समझ गए कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमारा ओरिजिनल इग्नियस रॉक्स पाया जाता है जो लावा से बना है। और लावा से जो भी वेदरिंग इरोजन हुआ है इग्नियस रॉक्स का, उससे ब्लैक सॉइल बना है। तो ये एक सुंदर सा आपको एग्जांपल यहाँ पे मिल गया। एंड उसको ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं? अनदर नेम इज़ रिगर। ओके, intrusive rocks, intrusive igneous rocks. These rocks are formed by solidification of magma beneath Earth's surface. The rate of cooling is much slow and size of crystal is very large. Example, granite, dolosites and pegmatite. तो अब ये देखो, यहाँ पे इस ये में देखो क्या होता है कि आपका इसको ध्यान से देखना है ना। लुक एट दिस फिगर केयरफुली। ये हमारा अर्थ क्रस्ट हो गया, अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। और ये मैग्मा हो गया। अर्थ क्रस्ट ठंडा होता है और मैग्मा गर्म होता है, तो जो इसके कांटेक्ट में, यानी कि अर्थ क्रस्ट के ठंडे अर्थ क्रस्ट के कांटेक्ट में जो भी मैग्मा का पार्ट आता है वो धीरे धीरे जब कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, तो इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यानी जब मैग्मा बाहर नहीं निकल के अंदर ही वो रॉक्स के रूप में वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, उसका वो जम जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द
coolness of the अर्थ क्रस्ट के कूलनेस से जब ये कोल्ड होने लगता है, ठंडा होने लगता है, और मैग्मा जो मोल्टेन है वो सॉलिडिफिकेशन होने लगता है ज़मीन के भीतर ही, वो बाहर नहीं आता है। बाहर आया तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएगा, और अंदर ही वो रॉक्स का रूप ले लेता है जब मैग्मा, तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एंड द ग्रेनाइट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द intrusive igneous rocks. So granite is very solid, okay, and we get this granite by mining. लावा को माइनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़मीन के सरफेस में मिल जाता है, लेकिन ग्रेनाइट को पाने के लिए हमको डोलेसाइट, और डोलेसाइट ये सब क्या है, कोयला का प्रकार है, पैग्माटाइट, ये सब कोल का टाइप्स है। और ग्रेनाइट जो है उसी की तरह का बहुत ही सॉलिड और बहुत चमकीला अच्छा रॉक होता है, एंड इट इज़ द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। बट इसको पाने के लिए हम लोगों को इन सब के लिए माइनिंग की आवश्यकता होती है। ओके, सो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। ना वी विल स्टडी characteristics of igneous rocks, and then the importance of igneous rocks later on. Okay, it is enough for today. Thank you.